safe and fine at your places and you're doing well. So students, what we were doing, we were doing chapter number 8 Microsoft PowerPoint 2010. So we have learned about PowerPoint के बारे में हमने सीखा था कि PowerPoint है क्या. So basically what is PowerPoint? PowerPoint is a application that is in Microsoft Office. Microsoft Office की एक application है जिसमें we will learn to about how to make the presentation. हम presentation बनाना सीखते हैं with the help of text, with the help of pictures. So these pictures, different and text with animation, it makes the presentation beautiful. So in short, in PowerPoint we can make beautiful presentation related to a specific topic. किसी भी एक specific topic के ऊपर हम presentation बना सकते हैं. So अभी तक what we have learned in this, we have learned about how to insert a slide. Components सीख चुके हैं हम, इन सारी tabs, file tab and all, और slide कैसे insert करनी है, how we can insert text कैसे insert करते हैं, and place holder के बारे में we have learned कि place holder क्या है. It is like a place where we can insert text. So all these things we have learned, and in today's session we will learn some more components of PowerPoint, कुछ components PowerPoint के, plus how we can give animation. हम animation कैसे दे सकते हैं. So what is animation, क्या होता है. Animation is when some text is moving in a different way. मतलब कोई भी text है, कोई भी picture है, बहुत different way से appear हो रही है. कभी zoom करके appear हो रही है, कभी round way में appear हो रही है, कभी fade होके appear हो रही है. So basically what is animation? The appearance of the text in one or different way. How the text is appeared on the slide, how the text is shown on in the slideshow manner. So that is, we are having different animation modes on that we will learn today. How we can give animation to text, picture को कैसे animation दे सकते हो. So these all things you will learn today, and you can apply that these all features in your animation, in your presentation as well. ये सारे features जो हैं आप अपनी खुद की presentation जो बनाओगे उसके लिए you can apply, you can practice it at home. So students, be with me on my so students, this is the presentation which we have made earlier, जो हमने पहले बनाई थी. So एक बार फिर से मैं आपको इसके tools के बारे में, components के बारे में बताती हूँ कौन कौन से हैं, and then we will move further. So first of all students, ये जो पूरी screen आपको दिख रही है, ये किस चीज़ की screen है. As you know that ये किस चीज़ की screen है, it is a screen of PowerPoint presentation. So PowerPoint presentation सबसे पहले क्या है. So let me tell you one thing. First of all, I just want to tell you कि आपको पता है कि PowerPoint कैसे खुलता है. आप search पे जाएंगे, from here you will search PowerPoint, and from there you will click on the PowerPoint application and the screen will be open. So this screen will be open. So ये किस चीज़ की screen है? This is the screen of PowerPoint presentation. So PowerPoint presentation क्या है? This is a application of Microsoft Office. Microsoft Office की एक application है. Microsoft Office Suite की एक application है जिससे कि हम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टेक्स्ट यूज़ करके, पिक्चर्स यूज़ करके, डायग्राम्स यूज़ करके, ऑडियो वीडियो एनिमेशंस दे के. सो इस तरह के इफ़ेक्ट्स दे के वी कैन मेक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर. एज वी हैव स्टार्टेड ऑन यूजिंग द टॉपिक ऑफ आवर स्कूल, हम अपने स्कूल का टॉपिक ले रहे हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज this software, this application is used to make the presentation. After that इसके अंदर this is your slide. ये क्या है? आपकी slide है. So slide क्या है? Slide क्या होती है? It is a like page of a book. Not, आप ये नहीं कह सकते कि book का page ही होता है. It is like a page of a book.
जो आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है। इसी तरह से एक स्लाइड आपको किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर या टेक्स्ट की फॉर्म में वो आपको जो है उसकी जो है इंफॉर्मेशन देती है टॉपिक की। सो and these are some components you can see there. So let me tell you some components. I'll again explain you some components जैसे हमने पहले पढ़े थे. So students, first of all I told you ये सारे क्या हैं? Yes, these are the tabs. Very true, very good. These are the tabs. ये सारे क्या हैं? Tabs हैं. File tab, insert tab, home tab, ये सारी क्या हैं? These are the tabs. After that ये क्या है आपकी? ये स्लाइड है. जिस स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे वही स्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिस वन स्लाइड विल गेट ओपन ऑन योर राइट हैंड साइड. ठीक है. सो यहाँ पे जो आप छोटी सी स्लाइड के पिक्चर देख सकते हो जो यहाँ पे ओपन हो रही है. सो स्टूडेंट्स क्या है ये आपका, ये जो आपको बड़ी सी पिक्चर दिख रही है जो स्लाइड की, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को हम कहते हैं स्लाइड पेन. स्लाइड पेन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड पेन. स्लाइड पेन में क्या होता है? जो हम स्लाइड ये वाला एरिया क्या होता है? दिस वन एरिया इज योर स्लाइड टैब. स्लाइड्स टैब. ये वाला एरिया, दिस वन इज योर स्लाइड टैब्स एंड दिस वन एरिया इज योर स्लाइड पेन. स्लाइड टैब के अंदर जिस स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करते हो, स्लाइड पेन एरिया में आप उसी स्लाइड को देख सकते हो. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लाइड टैब एंड स्लाइड पेन? सो स्लाइड टैब क्या है? वो आपको थंबनेल दिखाता है ईच स्लाइड का. थंबनेल मतलब एक छोटा सा पिक्चर, दैट इज यू कैन से मिनिएचर, उसकी छोटी सी प्रीव्यू दिखाता है आपको. अगर आप उसी चीज़ की बड़ा पिक्चर देखना चाहते हो तो यू नीड टू क्लिक ऑन द स्लाइड एंड दैट विल बी देयर इन द स्लाइड पेन. सो स्लाइड पेन क्या है? वेयर यू कैन स्लाइड पेन, इट इज़ द एरिया ऑन द विंडो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेयर यू कैन सी द इंडिविजुअल स्लाइड. आप हर स्लाइड को इंडिविजुअली देख सकते हो. और स्लाइड टैब के अंदर it is just a picture of a slide, thumbnail of a slide. So this is your slide tabs. ये slide tabs हैं. और ये क्या है? this is your slide, ये वाला area where you can see the single slide, जहाँ पे एक single slide, individual slide देखते हो. this is your slide pane. After that I just want to tell you कि ये आपको पता ही है, these are your all slides. ये क्या है? आपकी slides है. आफ्टर दैट एज यू कैन सी नीचे नोट्स लिखा हुआ है. सो जब आप नोट्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक एरिया आ जाता है. सो अगर आपको किसी भी स्लाइड से रिलेटेड कोई नोट्स लिखने हैं, कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में कुछ नोट्स देने हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू राइट दैट दिस स्लाइड इज मेन स्लाइड ऑफ DPS Sirsa. Anything you if you want to relate it to some slide, अगर किसी भी स्लाइड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कोई टेक्स्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन अलग से देना चाहते हो, उसको आप यहाँ पे नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो. सो दिस कैन बी ऐड ऑन इन योर नोट्स पेन. सो ये क्या है? बेसिकली किसी भी स्लाइड से रिलेटेड नोट्स आप देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे दे सकते हो. एंड आफ्टर दैट दिस वन इज़ डन. आफ्टर दैट यू नो दैट आपको टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना होता है. दिस इज़ योर प्लेस होल्डर, आपको पता है. एंड आफ्टर दैट इसके अंदर आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट में पिक्चर्स के अंदर जाके आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो. दैट ऑल्सो यू नो दैट नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है. यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक एंड न्यू स्लाइड विल बी देयर, न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड. आप न्यू स्लाइड जो है इंसर्ट कर सकते हो. सो दिस इज ऑल यू कैन इंसर्ट. पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड. इसके बाद
अगर आप इन्हीं स्लाइड्स को स्लाइड शो में एक बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो हेयर स्लाइड शो ऑप्शन इज देयर. आई टोल्ड यू स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड ये दो चीज़ें हैं. सो अगर आपको बिगनिंग से देखना है तो शुरू से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा. एंड इफ़ आई वॉन्ट टू लाइक स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, सो क्या होगा, मेरी करंट स्लाइड से जो स्लाइड शो शुरू हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कस्टम स्लाइड शो. कस्टम स्लाइड शो में क्या होगा, सिर्फ वो स्लाइड का स्लाइड शो होगा जिसको हम देखना चाहते हैं. कस्टम स्लाइड शो के अंदर जाके वी कैन सिलेक्ट द स्लाइड एंड ओनली द स्लाइड वी सिलेक्ट विल बी, we can see the slideshow of that slide only. So it is asking for custom show. This is asking for कि कौन सी स्लाइड का हमें देखना है स्लाइड शो. सो फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्लाइड एंड ऐड एंड ओके. सो show. So now it is showing me the slide only which I want to have a look. कस्टम स्लाइड शो स्टूडेंट्स हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स हैं. वी आर हैविंग एम्पल ऑफ स्लाइड्स, मतलब 20, 25, 30 स्लाइड्स हैं हमारी प्रेजेंटेशन में और मैं एक सिंगल स्लाइड को बीच में से देखना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कस्टम स्लाइड में अगेन आई एम गोइंग स्लाइड शो 1. So it is showing me that slide. So again I am going to custom slideshow, custom shows. Now it is asking me I can remove also, and if I want to new custom show में मैं करना चाहती हूँ, I want to have a look on second slide only. I will click on this slide and I will add it to the custom show and I will press OK and now show. So it will show me the slide only for which I have selected the custom show, जिसके लिए मैंने custom show select किया है. So this is the 3 options from beginning, from current slide and custom show. custom show में हम वही slide देख सकते हैं जिसको हम सिर्फ select करते हैं. beginning से सारी slides चलती हैं and custom से उसमें current slide में जिस slide पे हम currently हैं सिर्फ वही देख सकते हैं. So these are all are the 3 slide show views. ये 3 क्या है, आपके slide show views हैं जिनको आप देख सकते हो. And उसके बाद if you want to add some animation to the picture and text, so how can you do that? Animation tab is there. Click on the animation tab. I want to give that text animation. मैंने text को select किया. I am having many options here. बहुत सारी options हैं यहाँ पे मेरे पास. अपीयर है, फेड है, फ्लाइन है. सो जो भी इनमें से ऑप्शंस मैं चूज़ करूँगी. सो बेसिकली क्या है, दीज आर द ऑप्शंस रिलेटेड टू स्लाइड. सो दिस इज़ योर एंट्रेंस. इट विल अपीयर ऑन द एंट्रेंस. एम्फेसिस मतलब उस चीज़ के ऊपर वो उसको हाईलाइट करता है एंड एग्जिट मतलब एग्जिट के ऊपर वो चीज़ शो होती है. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट chosen squirrel. So it will, the animation is, as you can see, it is showing that animation is now applied and I want to put the animation on picture as well. So I just want to put it on exit में I just want to put in zoom. So now my animation is done. So animation में अब animation कहाँ पे show होती है हमें, slide show में. slide show में if I will click from beginning, so when I will click on, as you can see, so have you observed what has happened to it? So मैंने क्या किया, click किया तो that animation is applied to the text. But this picture Delhi Public School Sirsa का logo, it was already there. Why it is there? I have put the animation but still it is there. Why it is there? Because क्योंकि मैंने exit के ऊपर animation दी है. When I will click on it, the slide will exit and as you can see, your next slide has come with the exit. So
अगर मैं यहाँ पे जाके इसकी एनिमेशन को चेंज करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज द एनिमेशन, व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द एनिमेशन. मुझे एनिमेशन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा एंड देन आई कैन चेंज इट, क्योंकि इफ़ आई विल पुट अनदर एनिमेशन ऑन दैट द टू एनिमेशंस विल बी देयर. दो एनिमेशंस यहाँ पे होंगी. सो आई हैव रिमूव्ड द एनिमेशन. मैंने इसकी एनिमेशन को रिमूव कर दिया. So animation is now removed. So now if I want to give any other animation to it. So students, again I am giving the animation to the text. दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. यहाँ से एनिमेशन टैब पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम कोई भी एनिमेशन टेक्स्ट के लिए चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव चूजन फॉर मैंने चूज़ कर दी. एंड नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव द एनिमेशन, अगर मैं एनिमेशन को रिमूव करना चाहती हूँ, व्हाट आई नीड टू डू इज़ मुझे फिर से एनिमेशन टैब पे जाना होगा. एनिमेशन टैब पे जाके एज यू कैन सी एनिमेशन पेन इज़ देयर. एनिमेशन पेन पे जाके मैं स्लाइड को सिलेक्ट करूँगी जहाँ से मुझे एनिमेशन को रिमूव करना है. एंड नाउ माई स्लाइड इज सिलेक्टेड एंड आई विल क्लिक ऑन रिमूव. रिमूव पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी एनिमेशन स्लाइड से हट जाएगी. एज यू कैन सी अब यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू, एनिमेशन देने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज जिसके ऊपर हमें एनिमेशन देनी है. वी विल चूज फॉर द एनिमेशन. वन मोर थिंग, वी कैन सिलेक्ट फॉर द टाइमिंग एज वेल. यहाँ पे एज यू कैन सी द ऑप्शन स्टार्ट के ऊपर on click, with previous, after previous, 3 options are there. On click मतलब when you will press on the mouse click then animation will appear. With previous मतलब पिछली जो स्लाइड है उसके साथ ही आ रही है, ठीक है. एंड आफ्टर प्रीवियस मतलब पीछे वाली के जाने के बाद. सो हमने ऑन क्लिक चूज़ किया. Duration, for how much time animation will be there. So these are the options you can choose from there. And after that again picture के ऊपर अगर हमने animation देनी है, we have to select the picture and we have to select the animation. And again I am telling you, अगर हमें animation को remove करना है, animation pane पे जाएंगे, यहाँ से slide को select करेंगे या जो जिस भी चीज़ पे हमने एनिमेशन दिया है. फॉर एग्जांपल इट इज़ शोइंग कि आपने टाइटल पे दी है मतलब टेक्स्ट पे दी है. इट इज़ शोइंग आपने पिक्चर पे दी है मीन्स इस पे दी है. जिस पे भी जाओगे राइट क्लिक एंड रिमूव ऑप्शन. सो वी आर नॉट रिमूविंग इट. एंड एनिमेशन के बाद हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं विद प्रीवियस. सो विद प्रीवियस मतलब ये ऑटोमेटिकली आएगा. वी डोंट नीड टू क्लिक ऑन इट नाउ. स्लाइड शो पे अगर हम जाएंगे, so from beginning, so nothing is there. I have just click on mouse click and it has appeared. And with previous, because मैंने चूज़ किया था with previous, तो वो पीछे वाली एनिमेशन के साथ ही नीचे वाली जो थी दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की भी एनिमेशन आ गई. And now if I will choose after previous, अगर मैं वहाँ पे चूज़ करूँगी तो what will happen, वो उस एनिमेशन के बाद होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस एनिमेशन एंड विद प्रीवियस की जगह आई हैव चूजन आफ्टर प्रीवियस. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू माउस क्लिक दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा एंड आफ्टर दैट. सो विद प्रीवियस मतलब पीछे वाली एनिमेशन के साथ ही अगली एनिमेशन. आफ्टर प्रीवियस उसके बाद. एंड ऑन क्लिक अगर मैं दोबारा से क्लिक करती देन इट अपीयर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव एनिमेशन. आप एनिमेशन कैसे दे सकते हो पिक्चर को, टेक्स्ट को. दिस इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम and we will do something different next week in PowerPoint. Till the time, practice the students and read the chapter carefully. Bye students.